Okay, so let me record this session of GT, and I'm going to give you another task which is HPCL task only, which is important task, and very frequently it is being asked. Let me bring it on your screen and you just go through it for a couple of minutes.
Okay, so you have gone through this now. Yes, sir. Yes, sir. Let me tell you, speaking more is not fetching you marks. In fact, if you speak more and not relevant points, they will eliminate you. So what you have to do is you have to talk sense. You have to give some solution which is meaningful. काम की बात बोलनी है. Maybe 2-3 times only if you speak, but if you speak sense, they will take you because they are giving value to your thinking, creative thinking. So surely you should speak. You should speak sense which make some sense to them and Okay, not sir. unnecessarily talk, right? So practice that. Now I open the house for discussion. Unmute yourself, Amit, and we go for it. Good morning, friends. My name is So, Abdul. I guys, would like I to want start the to discussion. introduce the topic. Sir, my So name the is topic Jyotiranjan given Nair. is I want to introduce the Anyone, please, sir? topic about today's topic. So, we have a control system solution company named, and it is opened 30 years back, and now its income is 750 crores. But since 30 years, after 30 years, it is working very poorly and facing some difficulties. Like it has very poorly trained service engineers, and the R&D which was flourishing back then, it's very slow now. And the company is using so old method that it is taking very much time and for design and other commission. And we have one other main rivalry coming in the market, that is the Chinese marketing. So as the Chinese are entering the market, the PS, the public sector industries are breaking the ties with our company, and they are going for the Chinese company. And one another problem is that we have employees and customers. Our customers and employees are also leaving us. So so we are here to discuss about the internal and external influencing मतलब factors जो कि मतलब हमारी कंपनी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और हमारा स्लो डाउन हो रहा है बिजनेस, और हम इसमें क्या सजेशन दे सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को. तो आई ओपन द हाउस फॉर द डिस्कशन. By reading the task given to us, in my opinion, the internal factors, some of them are given like Yes, sir. poor management, poor people are Yes, living yes. and using We do the the internal survey. हम conventional internal methods survey for conduct commissioning करेंगे. and designing. So Yes, what yes. we can use is use the current and optimized softwares for that, and we can also go for hiring young professionals and some experienced ones also. Yes, First yes. of For all, this friend, time. we do the Sorry, internal survey. Internal survey में हम before management survey, base we पे can survey go for the करेंगे SWOT at higher analysis authority also, level. Higher strength, authority पे हम weakness, survey करेंगे opportunity, threat also, and we have to look for और the what are the टॉप reasons when मैनेजमेंट to टू why बॉटम employ and मैनेजमेंट पे सर्वे करेंगे कि अगर मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हम देखेंगे. फिर हम एक्सटर्नल सर्वे कंडक्ट करेंगे कि कस्टमर फीडबैक सर्वे करेंगे या फिर जो कंपटीटर कंपनी है उसके और जो व्हाई द PSUs आर लिविंग दैट ऑलरेडी टाइड अप एंड उसके बेस पे सर्वे और मार्केट्स ओवरऑल मार्केट सर्वे व्हाट इज द नीड ऑफ करंट मार्केट दैट वी आर प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट व्हाट इज द डिफेक्ट और नोट व्हाट यू से फ्रेंड. Yes, yes. And So also we basically, can it's a do the process very survey one kind of thing thing in where we are finding the R&D section of our company. So we can improvise by Yes, yes. recruiting the new people, as my friend said. But we also introduce new technology there, new softwares. Yes. So specialized ट्रेंड सर्विस इंजीनियर और हम हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो कहाँ लैक कर रहे हैं exactly या proper सॉफ्ट training स्किल or में लैक guidance कर is रहे हम हैं जो also कि important. ओल्ड मेथड्स जो यूज कर रहे हैं उसमें हम्म. मतलब हम न्यू मेथड्स यूज करके प्रोडक्शन कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, नया डिजाइन कैसे मतलब कम टाइम में प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको यस भी यस मतलब देखेंगे देखेंगे और तो जो अच्छा रिक्रूटमेंट होगा. होगा हमारा, उसमें हम क्या करेंगे ना कि एक्सपीरियंस पर्सन जिनकी स्पेशलिटी है, खास करके जिन्हें लॉन्ग एक्सपीरियंस है, उनको यस यस इनको प्रेफरेंस देंगे कि जिससे कि हमारा इम्प्रोवाइज हो जाए प्रोडक्शन और पहले जो तो हमें ये डिजाइन यस समझना यस पड़ेगा कि जो रिक्रूटिंग टीम जो है ना हमारी, उनको हमें एक अच्छे उनको
हम ट्रेनिंग पे देते हैं तो उसमें जो Yes. कॉस्ट लगता है वो यस कॉस्ट यस सही हमें रहे। ये भी हम देखना लोगों को पड़ेगा चाहिए कि जो एक इंटरनल एम्प्लॉयज एक्सटर्नल है हम लोग उनका जा सकते मोटिवेशन और हैं मोराल रिक्रूटिंग कैसा टीम है, के लिए, एचआर जो और वो बॉडी होती है पुअरली ट्रेंड है तो जो उनको कि हम हाईली ट्रेनिंग दें। एक्सपीरियंस्ड है, तो उसके लिए हम लोग जा सकते हैं ताकि हम लोग को बहुत ही अच्छा I would एक्सपीरियंस। also like to add one point, like one of my friends said कि मोटिवेशन ऑफ द वर्कर्स, तो मोटिवेशन के साथ साथ हमें उनका वर्क प्रोफाइल भी देखना पड़ेगा कि एक्चुअली यस यस द वर्क असाइन टू देम आर दे आर लाइकिंग और नॉट, बिकॉज कभी कभी यस ऐसा यस होता है कि आप वर्क प्रोफाइल गलत मिलने पे भी आप काम यस उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाते हैं। यस यस So डिपार्टमेंटल we have सर्वे to look करेंगे कि सेल्स for that also, डिपार्टमेंट, मार्केटिंग departmental डिपार्टमेंट survey, अलग से। exactly. तो ठीक है, हमने तो R&D गाइस के हम और R&D जो में मेथड्स है उनका कर लिए। तो आगे चलते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट, चाइनीज कंपटीटर थे जो मार्केट में, चाइनीज आर guys मोर उनके लिए हम फोकस क्या टू कर guys सकते I हैं? want लेस to add प्राइस चाइनीज का something प्राइस in जो ओरिएंटेड। अनऑर्गेनाइज मैनर है उसका हम लोग बहुत ही बेनिफिट उठा सकते हैं, हम लोग से बेनिफिट उठा सकते हैं। और हम लोग उनके प्रोडक्ट का रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं ताकि ये जाने के कि उनके प्रोडक्ट में और हमारे प्रोडक्ट में डिफरेंसेस क्या है, क्यों आखिर यस लोग हमारे प्रोडक्ट को छोड़ के उनके प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। यस और उनका जो पीएससी के साथ उनका न्यू टाई अप हो रहा है, तो उस पर हम लोग को फोकस करना पड़ेगा कि ऐसे आखिर वो लोग क्या प्रोवाइड करना दे रहे चाइनीज लोग, जो कि वो पीएससी कंपनी हमारे में इधर लैक कर रही है। guys बिल्कुल बिल्कुल। I और want to say something about R&D जो स्लो है हमारा, तो उसके लिए हम किसी आईआईटी या एनआईटी के साथ भी टाई अप कर सकते हैं, मतलब क्योंकि हमारा R&D इतना स्लो है कि यस मतलब यस फॉर जो न्यू न्यू डिजाइन टेक्नोलॉजी। न्यू टेक्नोलॉजी और डिजाइन के लिए हम उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि मतलब हमारा भी टाइम बचेगा और हम अलग चीजों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं वो टाइम। या ज्योति, क्योंकि अब हम लोग नया अपना आर&डी एस्टेब्लिश करें, उसमें बहुत टाइम टेकिंग होगा और कॉस्ट हाँ बहुत ज्यादा लगेगा, तो टाई अप में वैसा हम लोग को थोड़ा कम कॉस्ट में ज्यादा मिल पाएगा, अच्छे लोग ज्यादा मिल प्रोफेशनल पाएगा। लोग मिल पाएंगे। हाँ And we have to और also प्रोफेशनल भी, optimize हाँ the time that we are utilizing in commissioning and designing. So in that also we have to work now. यस We have implemented our technologies. We इन have R&D say we डिपार्टमेंट have हम ये भी tie up देखेंगे with कि IITs and जो IITs. Then कंपटीटर्स हैं वो now किस we टाइप have की to टेक्नोलॉजी यूज कर see. रहे हैं, उसके बेस पे हम आगे R&D डिपार्टमेंट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। एंड जैसे एक फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने बोला कि R&D डिपार्टमेंट के टाई अप के लिए हम आईआईटीज और इन डिपार्टमेंट से हम हेल्प ले सकते हैं, हम वैसे भी आगे कर सकते हैं। तो अगर हम और जो इंटरनल चाइनीज फैक्टर्स में, प्रोडक्ट्स है नहीं पहले मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग इंटरनल फैक्टर्स पे अगर बात करते हैं तो यस प्रायोरिटाइज यस भी कर देते हैं कि सबसे पहले हाँ क्या यस था। यस तो सबसे पहले तो मुझे हम्म लगता है कि पुअर मैनेजमेंट ही सबसे ज्यादा जरूरी है, तो उसको हम फर्स्ट यस यस प्रायोरिटी रखते हैं, फिर R&D सेक्शन से रख देते हैं, यस यस राइट। फिर थर्ड में शायद मैं चाहता हूँ कि हम कस्टमर फीडबैक पुअर सर्विस को रख मैनेजमेंट दें। में हम ये देख लेंगे कि जो हायर अथॉरिटी पे पर्सन्स बैठा है वो भी उसका विजन मिशन और सेम है कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ही इज हैविंग इंटरेस्ट इन दैट काइंड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड। तो ये शायद पुअर यस यस मैनेजमेंट में ही रख दिया है कि हाँ हाँ हमने हाँ तो यस यस हम रिक्रूटमेंट ही हाँ ठीक नहीं हाँ कर रहे हैं, तो यस पहला यस तो यही पुअर मैनेजमेंट हमने रख दिया प्रायोरिटी, पहला प्रायोरिटी। ओके ओके फिर दूसरा तो हम R&D सेक्शन रख ही रहे हैं कि यस हम हमारे R&D सेक्शन में हमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पर ऑल दो पहले से ही पूरी ट्रेंड सर्विस है ही और बहुत सारे यस टेक्नोलॉजी यस भी हम ऐड करेंगे, तो ये हम दूसरा यस रख देते हैं। यस यस और एंड कुछ ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज, स्किल डेवलपमेंट। After all of this, we have to focus on in advertisement also, because we have implemented all these current things. Now we have यस to look for that कि दुनिया को हमें जो भी लोग छोड़ जान के जा रहे हैं वो वापस कैसे आ सकते हैं, या फिर हम जो नए लोग आ रहे हैं उनको रिटेन कैसे कर सकते हैं। यस पब्लिक सेक्टर इसमें हम क्या एम्प्लॉयज कर आर सकते लीविंग हैं ना अस, कि सो वी नीड टू फाइंड पेमेंट्स को प्रॉब्लम्स क्या इंक्रीमेंट थी कर हमारी, सकते हैं, और एक्स्ट्रा हाँ पेमेंट्स एंड इंसेंटिवाइजिंग काइंड ऑफ थिंग। इंटेंसिवेट ताकि जो अलाउंसेस वेल विद ट्रेन पेमेंट माइंड है अलाउंसेस हमारे लाइक पास आए। प्रॉपर बोनस। ब्रोशर पे काम करना पड़ेगा कि लाइक हमारी क्या गलतियां थी और हमने क्या सुधारा, एंड फर्दर हमारे क्या कंपैरिजन है विद अदर चाइनीज प्रोडक्ट्स और बीट एनी प्रोडक्ट, और कैसे हम उनसे बेस्ट हैं इन आवर चाइनीज क्या मार्केट। करते हैं ना, बेसिकली जो उनका प्रोडक्ट है ना वो सस्ता होता है, पर उसमें हाँ उसमें चीप इतनी प्रोडक्ट्स आ क्वालिटी गए। नहीं होते ऐसे। पर हम यस क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा रिलायबल होगा। उससे क्या होगा ना कि कस्टमर यस चाहेंगे हम तब भी प्रोडक्ट में रेंज ऑफ हमारे को। प्रोडक्ट रख सकते हैं, रेंज ऑफ प्राइस दे सकते हैं, वो बेनिफिट आई थिंक करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में तो ज्यादातर जो लोग हैं वो मिडिल क्लास लोग हैं, तो हमें प्राइस हाँ ओरिएंटेड ज्यादा होना चाहिए। यस यस सबसे पहले हम मार्केट में पकड़ बना लेते हैं, इसके बाद हम कुछ लोगों के लिए जो हाई प्राइस प्रोडक्ट होता है वो बनाएंगे। तो यस यस मुझे लगता है सबसे पहले मार्केट को साधना पड़ेगा, तो हम प्राइस ओरिएंटेड या चीप जो चीजें होते हैं उसे उस पर हम ध्यान दें तो बेटर रहेगा हमारे लिए, हाँ ताकि हम यस जो चाइनीज आई एग्री, कंपनी है लाइक उससे पहले कंपटीशन कर हमें सके। एक रीजन डिफाइन करना होगा कि हम
कौन सा प्रोडक्ट किस जोन के लोगों के लिए बना रहे हैं, उस हिसाब से मार्केट वैल्यू Yes, के yeah, हिसाब से फिर हम प्राइसिंग rural हमें people एक also and urban measure people करेंगे। also, की बात करें rich तो हम and लोग poor कुछ ऐसा स्लोगन according यूज to कर that. सकते हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत की, लाइक हम ये जो हम लोग बेच Yes, रहे हैं yes, हमारे इंडिया हाँ, में ही बना है, हाँ तो ऐसे ऐसे वर्ड यूज करके थोड़ा लोगों में जागरूकता बढ़ा सकते हैं प्रोडक्ट के लिए। टैगलाइन दे आत्मनिर्भर सकते भारत, हैं हम. आत्मनिर्भर भारत, लाइक यस, Yes, yes. टैगलाइन लाइक। और जो हमारा डिलीवरी और मैनेजमेंट हम होगा, जो मार्केटिंग डिलीवरी की एम्प्लॉयज और कस्टमर्स हमें लीव करे, तो डिलीवरी में भी कोई अगर दिक्कत है या फिर उसमें भी हम इम्प्रोवाइज करेंगे। एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली लॉजिस्टिक्स तो डिलीवरी होता है ऑप्शंस इसके लिए हम लोग मींस क्या वहाँ करते पे हैं कि इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। टाइम एक टू टाइम एक्सटर्नल डिलीवरी डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स। मैनेजमेंट कर सकते हैं मे बी पॉसिबल हम विथ कन्वेंशनल मोर देन रिसोर्सेज यूज पॉसिबल, कर लाइक रहे हों ट्रैकिंग और इशू, हम. ओटीपी, ये सब हम लोग एक्सटर्नल बॉडी को ही वो पूरा Yes, जिम्मेदारी दे सकते हैं या डिलीवरी के लिए। आउटसोर्सिंग कर लेंगे हाँ, उसे, टेक्नोलॉजी फॉर टाइमली पेमेंट डिलीवरी ऑप्शन में, और आउटसोर्सिंग कर डिलीवरी लेंगे। ऑप्शन, और उसमें सब ऑर्डरिंग ट्रैकिंग भी ऑप्शंस। लगा लेंगे और कस्टमर को डिलीवरी डेट वगैरह वो भी इंश्योर कर देंगे, जिससे कि कस्टमर इंश्योर हो जाए कि उन्हें उसे टाइमली डिलीवरी मिलेगा। या जो एक्सपेक्टेड टाइम है उनमें मिले, और उसमें और सिक्योरिटी के लिए ओटीपी भी हो सकता होता है ना वहाँ पे, ओटीपी सिस्टम, लाइक ओटीपी Yes, बताना yes. पड़ता है तभी प्रोडक्ट आपको मिलेगा, तो वो भी हम कस्टमर लोग यूज कर फीडबैक, सकते हैं। कस्टमर कस्टमर फीडबैक फीडबैक भी. इज वन ऑफ द भी मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। कस्टमर फीडबैक बहुत दोनों डाल इम्पोर्टेंट सकते हैं रहेगा। रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट ऑन वेरियस स्केल। Yes. Friends, let's summarize what are the internal factors we have discussed yet now. So, Yes, yes. two internal factors that we have discussed is related to the employees that are leaving to us. So, for that, we are actually building their morale, planning their proper training, Yes. and for the time being what we are utilizing in design commissioning, we are implementing new technologies and softwares and tie up with good IITs and IITs, technical institutes for improvising our R&D. So these are two things, I guess, internal factors what we have discussed till now. And now I would like to call all of you for focusing on external factors. Like we have discussed some of the points, advertisement, promotion, cost, and all things. जो हमारा पीएसयूस है, जो हमें cost- लीव कर जा रहे हैं बीच में, तो उसमें हम क्या सकते हैं ना, पीएसयूस या फिर कोई भी कॉर्पोरेट डील वही फेल होती है जहाँ पे बहुत साइड में फायदा नहीं होता, प्रॉफिट नहीं दिखता। तो हमें उससे क्या होना कि जो प्रॉफिट है जो हमारा थोड़े पहले हम कम कर सकते हैं, या फिर इम्प्रोवाइज जैसे बैलेंस बना सकते हैं, जिसके कि क्या रीजन है कि पीओसी लीव कर जा रहे हैं, या ये प्रॉफिट ही है, अगर हम लोग या फिर इंटरनल उनको एक्सटर्नल ज्यादा फैक्टर परसेंटेज पे वर्क शेयरिंग मिल रहा करेंगे, है। तो अगर हम लोग अपने इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर पे जो भी हम लोग प्लान किए हैं अगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे तो हमारी कंपनी का ग्रोथ होगा। तो कहीं ना कहीं पीएसयू फिर से वापस आ सकेंगे, जब वो देखेंगे उनके छोड़ के जाने का वजह यही है कि हम लोग को वैसा ग्रोथ नहीं कर रहे हैं। तो अगर मान लें कि ग्रोथ करने लगे तो जाहिर सी बात है कि फिर हम लोग वो वापस आ सकते हैं, अगर उनको उनको ये इंश्योर कर दे कि हम लोग फिर से वापस से अपने वही जो 30 ईयर पहले जो कंपनी थी फिर से हम लोग वही सेम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो वापस आ जाएंगे। गाइस मैं ऐसा ट्रांसपेरेंसी सोच ऑफ रहा हूँ पॉलिसीज. कि जो पीएसयू छोड़ के जा रहे हैं उनको हम अपना मतलब हमारा मतलब 750 करोड़ का इनकम हो रहा है अभी, तो इससे हम उनको थोड़ा मतलब शेयर होल्डर बना सकते हैं उनको, जिससे कि उनके पास ही मतलब एक सिक्योरिटी टाइप का रहेगा कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी Yes, yes. सिक्योरिटी आ जाएगी कि हम कुछ भी हो जाए हमारा पैसा नहीं डूबने वाला इधर, तो Yes. उसके हिसाब से भी हम उनको मतलब छोड़ने से रोक सकते हैं। और कोई अदर फैक्टर्स हो सकता है जैसे एडवर्टाइजमेंट में हम सोशल मीडिया का यूज कर सकते या हैं. बिल्कुल इस नए जमाने में तो सोशल मीडिया का हम बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट स्कीम्स के का लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, क्योंकि Yes, ये एक yes. स्टार्टअप है जो इंडिया में स्टार्ट हुआ और इतने साल से चला आ रहा है, बट करंट में ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो कि हम इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, फर्दर इसको गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट के कर रहे बहुत हैं सारे और पीएलआई स्ट्रॉन्गर स्कीम्स लेवल। भी है, गवर्नमेंट Yes, के बहुत सारे जैसे पीएलआई कि स्कीम्स भी है, पीएसयूज लीव कर उनका रहे हैं तो इस्तेमाल कर हम सकते हैं। जो हायर अथॉरिटी है पीएसयूज की और जो एसवीटी एंटरप्राइज की है, हम उनकी एक मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है कि वो लीव कर रहे हैं, उनके बेस पे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मे बी पॉसिबिलिटी देयर की ट्रांसपेरेंसी ऑफ पॉलिसीज इतनी अच्छी नहीं हो हमारी, इसलिए वो लीव कर रहे हो, तो हम ये ऐसा भी कर सकते हैं. व्हाट यू थिंक अबाउट दिस? यस, ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस Yes. केस, व्हाट यू डिस्कस, कि ट्रांसपेरेंट होगा तो अच्छे से मैनेज हो पाएगा हमारा, और जो हमारे अदर कंपनीज जैसे प्राइवेट सेक्टर जो भी है, हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो भी हमारे से टाई अप है, so Yes, manage yes. so I think two factors that we have discussed is
for external managerial factors. management factors, which includes transparency and all. And the other one Yes. is the profit and government profit and incentivizing schemes, like Yes. using It of is government for and the all. external factors ना, मतलब Yes. Yes. हम external factors की बात कर रहे हैं हाँ कि external, हाँ external Yes. factors की बात External factors इसके में लिए हम Yes. पीएसयू को शेयर होल्डिंग बना रहे हैं, यस, जो एडवर्टाइज और मार्केटिंग मार्केटिंग के मैनेजर्स हैं उनकी मीटिंग कंडक्ट करवा सकते हैं, और जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसमें जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो मार्केटिंग मैनेजर हमें बता रहे हैं कि मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट हमें बनाना चाहिए, मे बी देयर वी आर लैकिंग देयर, जी मार्केटिंग मैनेजर हमें जो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस ना कर पा रहे हो, वो भी हो सकता है डिजाइनिंग प्रॉब्लम मे बी देयर, कि कस्टमर की फीडबैक के अकॉर्डिंग हमें डिजाइन ऐसे करना चाहिए, बट कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल रहा होगा उनको। यस 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 हमारा फीडबैक सिस्टम में तो कुछ गड़बड़ी है, मतलब तो On the फीडबैक के external- हम जब डिलीवरिंग करेंगे तो ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारा वेबसाइट है, पोर्टल है, वहां पे भी फीडबैक सिस्टम कर सकते हैं, कि जिससे क्या होगा कि एक राइट फीडबैक मिलेगा कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं और कहाँ पे इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है। यस यस सॉल्यूशंस, तो ओवरऑल तो हम प्रॉब्लम्स के और प्रॉब्लम के साथ साथ हमने सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस कर ही लिया है हर चीज को लेकर। फॉर एग्जांपल कोई कुछ और बोलना चाहेगा? नहीं, कोई कंक्लूजन अगर देना चाहेगा तो दे सकते हैं अभी। जैसे हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इसमें हम ध्यान दे रहे हैं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, हम कॉस्ट, पहले एक्सटर्नल जो है उनको और समराइज कर इसमें- लेते हैं। हाँ हाँ, पहले एक्सटर्नल एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम समराइज कर लेते हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो Yes. हम कस्टमर के साथ बिल्ड कर रहे हैं, कि क्वालिटी प्रोडक्ट, कॉस्ट एंड टाइम टू टाइम डिलीवरी एंड ऑर्डरिंग ऑप्शंस, यस यस इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सेकेंडली अथॉरिटी, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, अथॉरिटी टू हाई, मतलब पीएसयू को स्टेक होल्डर्स बनाना, शेयर होल्डर्स करना, इक्विटी शेयर दे सकते हैं। इक्विटी शेयर दे सकते हैं। और कोई पॉइंट्स ऐड करना चाहेगा इसमें? और मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया, हैव यू डिस्कस मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया? हाँ, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, सोशल मीडिया और मीटिंग्स भी कंडक्ट करेंगे सेल्स डिपार्टमेंट, या जिससे meeting में, फीडबैक हाँ, मिले कि हम लोग कहाँ लैग कर रहे हैं प्रोडक्शन या डिजाइन में। यस। हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं ना कि जैसा पॉइंट मेंशन था कि चाइनीज कंपनीज आर अनऑर्गेनाइज्ड मैनर, तो Yes, एक सर्वे ये entering कर in the सकते हैं कि market हम unorganized. उनके क्या क्या प्रोडक्ट्स जो हैं वो Yes, किस yes. तरह से हैम्पर करेंगे हमारी सोसाइटी को या फिर हमारे Yes, मार्केट को, यस तो यस इसकी बेसिस पे भी हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसे वैल्यूएबल है उनसे। यस यस थोड़ा सा क्वालिटी price बेस्ड एक हम चीज है, कस्टमर को quality अवेयर based. कर more सकते हैं। important for us. यस और एक चीज यहाँ पे ये भी ऐड कर सकते हैं, जो चाइनीज कॉम्पिटिटर्स है उनके लिए भी एक कॉम्पिटिटर्स होगा, जैसे कि छोटे स्टार्टअप होंगे या फिर हम उनको एक्वायर कर सकते हैं, यस यस जिनके हम उनको अदर हाँ, स्टार्टअप yes, के करने साथ में टाई अप तो कर सकते इजीली हैं फॉर एट द इनिशियल लेवल। हाँ, हम ऐसे स्टार्टअप के साथ टाई अप कर सकते हैं जो अभी इनिशियल लेवल पे बहुत अच्छा कर रहा हो और या वो उसकी उनको टफ पॉलिसीज अच्छी कंपटीशन हो। भी देगा, जिससे यस कि हम्म। हमारी भी मार्केटिंग्स बढ़ जाएंगी और उनके Sales पास बढ़ेंगे। मतलब नया नया टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव आइडियाज भी होंगे जो मतलब मार्केट में अच्छा चल सकते हैं, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी हो सकता है उनसे, बिल्कुल। तो उनके साथ टाइप करना भी अच्छा आइडिया है। हाँ, टाई अप इज अ गुड पॉइंट आई थिंक। समराइज करें, मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स हाँ, क्या क्या हमने डिस्कस हाँ किया। समराइज कर लेते हैं। यस यस तो इंटरनल फैक्टर्स की पहले हमारा वर्क कल्चर और हमारा जो कंपनी मैनेजमेंट है वो कैसे ही होगा, यस एंड यस अदर वन इज कि हम टेक्नोलॉजीज जो हम लैक कर रहे हैं उसको कैसे ले आर आएंगे, एंड डी डिपार्टमेंट में मोर R&D इन्वेस्टमेंट। और इंजीनियर्स। यस एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल में हमने डिस्कस किया कस्टमर रिलेटेड एंड अथॉरिटी रिलेटेड। कस्टमर रिलेटेड है कि कैसे ट्रांसपेरेंसी आएगी, कॉस्ट, क्वालिटी एंड ऑल द थिंग्स, एंड फॉर अथॉरिटी शेयर होल्डिंग एंड और टाई अप पीएसयू कैसे नहीं छोड़ के जाएंगे। न्यू स्टार्टअप्स। यस।
Okay, then shall I conclude then the discussion? You can Sir conclude. will Okay. tell. Yeah. You can conclude. Yeah, Okay, go for then. it. Go for it. Conclude. Yes, sir. So we have concluded that हम दो फैक्टर्स पे फोकस करेंगे, जैसे कि हम क्या क्या इंटरनल चेंजेस कर सकते हो, क्या क्या एक्सटर्नल कर सकते हैं। तो जैसे कि हम इंटरनल चेंजेस में जैसे सबसे पहले कि जैसे कि हमारा R&D है, जो वहाँ पे हम रिक्रूटमेंट करेंगे, जो NITs है IIT से स्पेशली उन पे फोकस रहेगा, जैसे कि हमें न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू टैलेंट मिल जाए, और उनको हम यही भी इंश्योर करेंगे जो हमारे रिक्रूटमेंट है उनको सही ट्रेनिंग या स्किल सेट मिल रहा है, जिससे कि वो पॉसिबली फ्यूचर में हमारे एसेट बन जाए। सेकेंडली, हमने जो अपना POCs लिव कर रहे हैं उनके साथ हमें शेयर होल्डिंग्स करनी चाहिए, जिससे कि उनको एक भरोसा होना चाहिए कि हमारा पैसा डूबेगा नहीं, और उनको इक्विटी शेयर भी मिल गया है। थर्ड, हम ये कर सकते हैं कि जो एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर में जो मैनेजमेंट लेवल है वहां पर भी कुछ मीटिंग कर सकते हैं, और जो हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वहां से इनपुट्स ले सकते हैं कि हमारा प्रोडक्शन या R&D डिपार्टमेंट हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन या जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है वो हो जाए। और जो जैसे कि हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जैसे कि चाइनीज कंपटीशन है, तो उनके लिए हम प्रोडक्ट की वैरायटी बना सकते हैं। और साथ में ही जो स्टार्टअप्स है, न्यू स्टार्टअप्स होंगे मार्केट में जो उनको टफ कॉम्पिटिशन, उनसे टाइप कर लेंगे, जिससे कि हमारा मेन फोकस हो, वो मेन सेल्स बढ़ जाएगा। और जो ट्रांसपेरेंसी होगी कस्टमर्स के लिए ट्रांसपेरेंसी, और जो हम ये भी कर सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट वो हो सके जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो जाए, और जो हमारा डिलीवरी हो टाइमली हो जाए। और जो हमारे एम्प्लॉयज है जो हमें छोड़ के जा रहे हैं उनके लिए हम ये कर सकते हैं कि जो उनके साथ उनको लिए पे इंक्रीमेंट या अलाउंसेस या बोनस कुछ ऐड कर सके। और जो हमने स्टार्टिंग में जो रिक्रूटमेंट किया था उनके लिए ये इंश्योर करे जो उनका मोरल कभी डाउन नहीं होना चाहिए, जो उसी के लिए इंथुजियाज्म और पैशनेट हो सकते, जो कंट्रीब्यूट करेंगे। That's Okay. all, sir. Thank you. Okay, so let me now give you the solution. क्या है बाकी इसका फीडबैक मैं ऑडियो फीडबैक भेजूंगा आपको, लेकिन सोल्यूशन मैं इसको देता हूं आपको। वेरी क्लियरली आस्क्ड यू 2 internal and 2 external factors which you have to prioritize and solution. So from the task it is very clear that 2 main internal factors this company is suffering from is number 1 their R&D wing, because you know to be in competition you need to roll out new products and compete. R&D wing has to be very strong. Designing new product and rolling out that product and design ko to market, pull it in the market, your R&D wing should be very very strong. That is one factor internal which we have to work. Second is training and hiring and firing of employees. Hiring, firing and training of the employees. Hiring new blood which are suitable, firing those who are liabilities, and training for R&D, training for service, training for marketing, that is a new domain. These two are the main problems which our company is suffering as of now. Internal factors. And external factors are competition from new companies like Chinese companies, and another is collaboration with other partners like PSUs and all. जो हमारे पुराने पार्टनर हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन, PR and collaboration. So now the solution for internal is like R&D wing. R&D के लिए you need to do comparative analysis of your other companies also, what products they are rolling out, and our team should be capable team. Innovative and creative infrastructure is to be created so that your R&D keeps on going. And HR department is to be created, good HR department where new employees are hired, old are liabilities are fired, and training is important. That entire thing is HR department. So HR से related activities required हैं यहाँ पे. Employees whether they are working or not working, so that HR activities are to be done properly. And second is like you know this factor is training, that is entire HR, and R&D मैंने बता दिया उसको आपको, R&D infrastructure is to be created. And external problem is like you know Chinese company, so competitor का SWOT analysis is to be done. So the competitors which we have, Chinese and all, their SWOT analysis is to be done, SWOT, what strength they have, what weaknesses they have, where we can compete them, how we can do that. That is particular thing is to be done. And we need to closely link our marketing strategy as per their weaknesses. Second is collaboration with PSUs. So very good PR and collaboration is another thing which is required with our old partners. That is another thing which we need to do. So on these lines we have to work, 2 internal, 2 external, that is how we have to do it, right?
So that's the line of action which we have to think of. Now, anything you want to ask, Kautal? सर जैसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो हम एक्सटर्नल फैक्टर में जैसे कोलैबोरेशन विद पीएसयूज बात कर रहे हैं, ये फैक्टर में आ रहा है कि जिस वजह से हमारी मतलब कंपनी में जो बुरी चीजें हो रही है, ये नहीं, ये external पुराने factor में- पार्टनर है ना तुम्हारे। पार्टनर्स आपको क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि पीआर नहीं कर रहे हो तुम। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआर होता है, पीआर होता है, ये एक्टिविटीज होती है ना। तो अगर पीआर नहीं हो रहा है तो तुम्हारे कोलैबोरेटर तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, पार्टनर छोड़ के चले जाएंगे, ये ट्रबल आएगा। और अगर एचआर नहीं होगा तो एम्प्लॉय छोड़ के चले सर जाएंगे। तो ये फैक्टर तो ये होगा ना कि हमारे पीआर ठीक नहीं है, मतलब ये फैक्टर तो नहीं कर सकते ना कि कोलैबोरेशन नहीं हो पा रहा है पीएसयू से। कोलैबोरेटर जिनसे पार्टनर्स के साथ उनके साथ कोलैबोरेशन करना, ये एक फैक्टर है आपको, जो आपको फोकस करना है। पीआर में बहुत सी चीजें आती हैं। उस पीआर में जो आपकी कंपनी के लिए पीआर चाहिए वो है जो जिन कंपनी से आपका रिलेशन है पीएसयू कस्टमर्स के साथ, उनके साथ कोलैबोरेट ढंग से करना, वो है पीआर। इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, ओके सर। राइट? दिस इज हाउ वी आर। कई जगह हमने डिस्कस किया कि हम अदर स्मॉल वेंडर्स लाइक स्मॉल टेक्नोलॉजी से भी टाइप कर सकते हैं, जो नए नए स्टार्टअप्स हैं, तो ऐड कर सकते हैं points? नहीं, आपका जो अभी प्रॉब्लम्स है उन पे फोकस करो। हाँ, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है उनके साथ कोलैबोरेट करो, वो भाग रहे हैं अभी। तो उन पे फोकस करो। ऐसे तो बहुत सी चीजें उसने 2 बोली है ना तुम्हें ओनली, तो तुम 2 से ज्यादा मत सजेस्ट करो। सर ऐसा है कि कभी मतलब कि अगर जैसे यहाँ पे कन्वर्सेशन जैसे हमारा बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया तो हम उसी समय सॉल्यूशन दे दे कि हम इसको ऐड करते रहे जब तक कोई हमें रोकने के लिए नहीं हमारा बनता। बात खत्म होनी नहीं चाहिए। वैसे ऐसा नहीं सिचुएशन आना चाहिए कि तुम्हें बोलने को कुछ नहीं है, तुम्हारे पास चलता रहना चाहिए। बट यहाँ पे तुम्हारा वो सिचुएशन आ गई, तुमसे बोला नहीं जा रहा है, तुम चुप हो गए हो, वो सिचुएशन आ गई। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा डिस्कशन 4-5 सर लोग बैठे हैं। सर ये जो चाइनीज कंपनी बोला है जो अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में एंटरिंग किया है, उसका मतलब थोड़ा बता सकते हैं? अनऑर्गेनाइज्ड मींस कि वो कुछ भी बिजनेस टैक्टिक्स यूज करके आपके कस्टमर को उठा ले रहे हैं, ले रहे हैं। सस्ता में दे देंगे, कुछ डील दे देंगे, ऐसी अनऑर्गेनाइज्ड है वो। हम्म। कंपटीशन, जैसे चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं, वो कस्टमर के हिसाब से अपना प्रोडक्ट चेंज कर लेते हैं। उनका क्वालिटी वगैरह का ओके कोई ये सर। नहीं होता। अच्छी क्वालिटी दे देते हैं, पुअर क्वालिटी दे देंगे, कस्टमर ले लेंगे तुम्हारा। ओके सर। राइट, चलो वर्क ऑन इट एंड आई विल बी सेंडिंग यू द फीडबैक, लिसन टू दैट फीडबैक। सॉल्यूशन ये है, ओके सर। ज्यादा से ज्यादा टास्क सुनो सो दैट यू डेवलप योर आइडिया, राइट? ओके सर, थैंक यू।